Hello students, in our today's video we are going to learn about central bank and what are the functions which are performed by central bank. So before I begin with the functions of central bank, let me just explain you students what is this central bank and what is it about. See, central bank, it is an apex body that controls, operate, regulates and direct the entire banking and monetary structure of the country. So it is known as apex. Apex मतलब क्या होता है? Supreme. Apex means what? Supreme body. Why? Because it is occupying the topmost position in the monetary. अब banking system में what is the role of the central bank? Already you are knowing because in the earlier videos I told you. Now how it is having its control or how it is operating on monetary structure. It means कि अगर इकोनॉमी में पैसों की कमी आ गई, ओके, या फिर पैसे और प्रिंट करवाने, मतलब नोट्स की प्रिंटिंग और करवानी है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? दिस विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक. पैसों से रिलेटेड सेंट्रल बैंक के पास सारी अथॉरिटी होती है. मतलब बैंकों को भी अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बैंकों को तो देखना ही देखना है सेंट्रल बैंक को, और इकोनॉमी में जो भी मनी सप्लाई से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सब हु इज गोइंग टू हैंडल? सेंट्रल बैंक इज गोइंग टू हैंडल. राइट स्टूडेंट्स? सो ऑल द फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक. हर फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है. ये तो मैंने पहले वीडियोज में बताया भी था. एज यू ऑल नो, इंडिया सेंट्रल बैंक इज वॉट? RBI. ओके, राइट. सो RBI क्या है? RBI इंडिया का एक सेंट्रल बैंक है. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर April 1, 1935 under Reserve Bank of India Act, which is passed in 1934. It is an important line. If you write in exam, you are authorized or you will be, means your answer will be impressed. So it is very good that if you write this. Now students, now let us see the functions of this central bank. Means what is the work of this central bank, how it performs. See, as a central bank of the country, the Reserve Bank of India performs the following functions. So this much functions the Reserve Bank of India is performing. First function is what? Currency authority. One by one, first I am reading the points and I am going to explain you. Second function is banker to the government. Third is bankers, bank and supervisor. Means RBI or RBI मतलब central bank. Now RBI or central bank, it is acting as bankers, bank and supervisor. Next is controller of money supply and credit, and last is custodian of foreign exchange and reserves. So students, in our today's video we are going to learn about all the functions very carefully, and this question is very important in your next chapter also. This is included, so that's the reason I'm teaching you this topic. But in today's video I will not be covering this point, controller of money supply and credit, because this is a very important point. So I'm going to make a separate video for this, right? So first let us begin with the first function, that is currency authority. Currency authority का मतलब क्या होता है? सारे जो सेंट्रल बैंक के पास सारे पावर्स है. इट इज ऑथराइज्ड टू इशू द करेंसी इन द कंट्री. सो इन इंडिया RBI के पास पूरी अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी है या सोल राइट है फॉर इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स. एक्सेप्ट खाली किस चीज की अथॉरिटी नहीं है? 1 rupee notes and 1 rupee coin. Why? Which is issued, they are issued by Ministry of Finance. 1 rupee नोट या फिर 1 rupee का जो कॉइन है उसको इशू करवाना किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, ना कि RBI के हाथ में. ठीक है. सो द 1 rupee नोट यू मस्ट हैव सीन, इट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी. ठीक है. वाइल द करेंसी नोट बेयर्स द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ RBI. ठीक है. So all the currency issued by the central bank is its monetary liability. That is, central bank is obliged to back the country with assets. मतलब जो प्रिंटिंग होता है उसकी एक मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है कि उतने एसेट्स उन्हें जमा करने पड़ते हैं इक्वल वैल्यू के. वाई? टू एनहांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पेपर करेंसी. अदरवाइज कोई भी बोल सकता है कि चलो पैसों की कमी आ रही है, पेपर तो है, नोट्स प्रिंट कर दो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जितने नोट्स प्रिंट होते हैं उसके अगेंस्ट में किसी एसेट्स का जमा होता है जो कि उतने ही इक्वल वैल्यू का होता है. तो एसेट्स जनरली यूजुअली कंसिस्ट कौन से होते हैं? अब आप लोग सोचोगे मैम एसेट मतलब क्या, तुम्हारा जो फर्नीचर हो गया या फिर जो बिजनेस में एसेट्स होते हैं वो नहीं. यहाँ पे यूजुअली एसेट्स का मतलब होता है गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस,
फॉरेन सिक्योरिटीज होती है ना, और डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स लोकल करेंसी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें एसेट्स होती हैं। नाउ अब ये जो आरबीआई के पास ये जो करेंसी अथॉरिटी की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी है। देर आर सम एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज इज व्हाट, इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो सारे नोट्स जो इशू अगर एक ही जन कर रहा है आरबीआई, तो सब में यूनिफॉर्मिटी है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सब एक जैसे प्रिंट हो रहे हैं। मान लो अगर आरबीआई के पास ये अथॉरिटी होती ही नहीं, कि सोल अथॉरिटी नहीं होती, कोई भी बैंक बोलता हम नोट्स प्रिंट कर देंगे, तो आप लोग बताइए इट वॉज पॉसिबल कि सारे नोट्स में सोल यूनिफॉर्मिटी होती? क्या नहीं। कोई बैंक बोलता हम पिंक कलर का प्रिंट करवाएंगे, या कोई और बैंक बोलता हम ग्रीन करवाएंगे, या फिर कोई ब्लू, या कोई अलग अलग शेप्स या डिजाइन का, सो दैट वोंट लुक प्रॉपर। तो उससे क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। तो एडवांटेज सबसे पहला ये है कि इट इज लीडिंग टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। दूसरा एडवांटेज ये है, इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक को क्या मिल रहा है, ये पावर मिल रहा है कि मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस करना है, एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। सॉरी, सेकेंड एडवांटेज ये है कि इट गिव्स द सेंट्रल बैंक पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। क्यों मनी सप्लाई मिलती है? बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि कितना पैसा मार्केट मतलब कितना मनी जो है सर्कुलेट करना है, या कितना मनी प्रिंट करवाना है, बैंक का रेट कितना होना चाहिए, एफडी का रेट क्या होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? इट इज ऑल डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। Then third advantage is it enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to issue of notes. इससे क्या होता है कि आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं प्रिंटिंग करने के लिए। क्या होता है, उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स है। हाँ, ये तो मैंने बता दिया, एक्सक्लूसिव राइट्स है प्रिंटिंग करने के लिए। और दूसरी, हाँ, थर्ड, वी वर टॉकिंग अबाउट थर्ड पॉइंट, इट एनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन। मतलब क्या, गवर्नमेंट के पास पूरा ये राइट है कि वो सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके सेंट्रल बैंक को विथ रिस्पेक्ट टू इश्यू ऑफ नोट्स, मतलब कितने नोट्स इशू करने हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट एंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। अगर एक ही जन नोट्स इशू कर रहा है या प्रिंट हो रहा है, तो लोगों के मन में एक फेथ है, एक विश्वास है अपने करेंसी सिस्टम को लेके। लास्ट एडवांटेज इज इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। करेंसी की जो वैल्यू है, इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन, मीन्स इट हेल्प्स इन द मेंटेन। करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ती कम ना होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, करेंसी अथॉरिटी। सेकेंड फंक्शन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। नाउ सी स्टूडेंट्स, बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब जैसे हम लोग अपना पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सेम उसी वे में गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपना पैसा जो है सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करती है। यू नो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, वी डिपॉजिट अवर मनी वेयर, वी डिपॉजिट इन द कमर्शियल बैंक। सेम वे गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट करती है, सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करती है। ठीक है, अब बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब, मान लो कोई क्राइसिस आ गई किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो मनी विच इज रिसीव्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को, सो द मनी विच इज रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो हर गवर्नमेंट के अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। ठीक है, बट इन दिस केस एक्सेप्ट इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पॉइंट जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ मेनी कंट्रोवर्सीज ओवर देयर, राइट। थर्ड पॉइंट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या होता है, सभी बैंकों का बैंक है ये। ठीक है, आरबीआई क्या है, सभी बैंकों का बैंक है। कमर्शियल बैंक जो है अपना अकाउंट सेंट्रल बैंक पे खुलवाती है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो अपना अकाउंट कहाँ खुलवाती है, सेंट्रल बैंक में। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये एक सुपरवाइजर की तरह काम करती है। अब देखो अब ये कैसे सुपरवाइजर की तरह काम करती है, आपको इस पॉइंट को समझना होगा बहुत ध्यान से। See, there are number of commercial banks in our country. Now you all know there are many commercial banks in our country. So there should be some agency to regulate and supervise their proper functioning. उनकी सारी functioning जो है properly हो रही है कि नहीं, उसके लिए कुछ agency होनी चाहिए।
सो एपेक्स बैंक है, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है, तो इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू दी बैंक्स, ठीक है, वो पूरा रेगुलेट करता है. इन दिस सेंस इट बेयर्स द सेम रिलेशनशिप विद कमर्शियल बैंक एज द लेटर मेंटेन्स विद द जनरल पब्लिक. जैसे कमर्शियल बैंक्स जो है, जो हमारे साथ रिलेशनशिप रख रही है, सेम वे सेंट्रल बैंक कौन सा रिलेशनशिप रखेगी, सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स के साथ रिलेशन रखती है. सो एज द बैंकर टू बैंक्स, क्योंकि ये बैंकर्स का बैंक है, सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस है, 3 कैपेसिटीज. सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन 3 कैपेसिटीज. 3 कैपेसिटीज में सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस है. तो फर्स्ट फंक्शन है उनका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स. कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स. इसका मतलब ये होता है, देखो, कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स नोन एज कैश रिजर्व रेशियो. अब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप लोग समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझोगे. देखो, सपोज मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया था LRR के बारे में, लीगल रिजर्व रेशियो. देखो, हम लोग एक कस्टमर है, हम लोग जनरल पब्लिक है, ठीक है, वी आर द पब्लिक. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे पास जितना भी कैश होगा डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम बैंक के पास जमा कर देंगे. जितना भी कैश होगा हम कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. अब सपोज मान लो मैंने 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है. अब जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, कमर्शियल बैंक क्या करती है, ये पूरा 100 रुपीज़ तो लोन नहीं देती है, ठीक है, ये तो आपको बताया था ना मैंने, ये याद है कि नहीं याद है, प्रीवियस वीडियो में देखो. सपोज LRR रेशियो 20% है, तो 20 रुपीज़ LRR रेशियो में होगा और 80 रुपीज़ जो है वो बैंक क्या करेगी, उस पैसे से डेफिसिट सेक्टर को लोन ग्रांट करती है. राइट, इतना समझ में आ गया था, ये तो याद होगा ना. 20 रुपीज़ इट विल कीप विथ अस एज अ रिजर्व रेशियो एंड 80 रुपीज़ इट विल लेंड टू लोन. अब आप देखना है यहाँ पे आगे क्या होता है. अब ये जो LRR है, इसका भी बैंक क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. इस 20 रुपीज़ को 2 पार्ट्स में बैंक डिवाइड करेगी, ठीक है. 4 रुपीज़ अलग रखेगी और 16 रुपीज़ अलग रखेगी. तो 4 रुपीज़ किस लिए रखेगी, CRR मतलब कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, मतलब इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. इट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है. और जो बचे हुए 16 रुपीज़ है, दैट इज नोन एज SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो. समझ में आया आपको. अब देखो, जैसे मैंने बताया, अगर हमने 100 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए तो 20 रुपीज़ बैंक लीगल रिजर्व रेशियो में रखती है और 80 रुपीज़ क्या करती है, लोन. अब ये 20 रुपीज़ बैंक क्यों रखती है, मैंने बताया था ना कि इन केस अगर ATM से किसी को पैसे विड्रॉ करने हैं तो बैंक के पास भी तो कुछ पैसे होने चाहिए. लेकिन ये जो 20 रुपीज़ है, इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया है. रुपीज़, मान लो एक एग्जाम्पल में दे रही हूँ, या कुछ परसेंटेज होता है उसका, उसमें से 4 रुपीज़ CRR रख दिया, मतलब कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो मतलब ये 4 रुपीज़ उसको किसको देना होता है, सेंट्रल बैंक को. क्यों, बिकॉज सेंट्रल बैंक इज एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व. ये 4 रुपीज़ उनको किसको देना पड़ता है, सेंट्रल बैंक को. और बचे हुए 16 रुपीज़ वो खुद अपने पास रखती है. कौन रखती है, कमर्शियल बैंक. किस लिए, बिकॉज इट इज नोन एज statutory liquid ratio. Always students, you please remember this. This is a very important point. LRR is equal to CRR plus SLR. LRR क्या है, legal reserve ratio. CRR is what, cash reserve ratio, and SLR is what, statutory liquidity ratio. LRR मतलब इतना रुपीज़ बैंक के पास होता है, इतना परसेंट, 20 रुपीज़. उस 20 रुपीज़ के 2 पार्ट होते हैं. CRR जो होता है वो कैश रिजर्व रेशियो, वो उसको सेंट्रल बैंक को देना होता है. और SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये उसे अपने पास रखना होता है अगर ATMs में पैसे नहीं है या फिर जो भी कुछ बैंक के फंक्शनिंग के लिए पैसे चाहिए. आगे सबको समझ में. दिस इज नोन एज व्हाट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. अब देखो, सी फोर्थ पॉइंट जो है ना, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. So I'm going to make a separate video as I told you in the beginning. So now let us start this point. Custodian of foreign exchange and reserve. RBI or central bank is acting as a custodian of
फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व. अब देखो, custodian of foreign exchange and reserve means what, students? See, देखो, जो भी फॉरेन करेंसीज होती है हमारी कंट्री की, उसको रखने के लिए राइट्स होता है किसके पास? सेंट्रल बैंक को राइट्स दिया गया है. इसका मतलब जो भी इट मीन्स 2000 से, देखो फॉरेन करेंसीज मतलब कोई भी फॉरेन कंट्रीज के करेंसी हो गई. जैसे कोई भी मान लो किसी दूसरे कंट्री का जो करेंसी है वो अगर हम अपने पास रखना चाहते हैं, सो वी कैन नॉट कीप मोर देन 2000. कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है अपने पास 2000 से ज़्यादा नहीं रख सकता. वी कांट कीप मोर देन दैट. फॉर एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज पर जो है वो कौन कंट्रोल रख सकता है? सिर्फ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख सके. नो अदर पर्सन कैन लाइक दैट कीप विद देम सेपरेट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो दिस इज अबाउट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मीन्स सेंट्रल बैंक इज एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्री स्टॉक. पूरी हमारी कंट्री का जो स्टॉक होता है गोल्ड का या फिर रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, वो हु इज एक्टिंग? सेंट्रल बैंक इज एक्टिंग एज अ कस्टोडियन ऑफ ऑल दिस फॉरेन एक्सचेंज. इस फंक्शन से क्या होता है? दिस फंक्शन इज एनेबलिंग द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज. उससे क्या होता है? हमारे पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है उसका आरबीआई के साथ, आरबीआई के ऊपर क्या होता है? उसके पास एक कंट्रोल होता है, रीजनेबल कंट्रोल. सो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑल द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस मस्ट बी राउटेड थ्रू, सारे ट्रांजैक्शंस किसके थ्रू होने चाहिए? इट शुड बी रूटेड थ्रू आरबीआई. ऑल द ट्रांजैक्शंस शुड बी रूटेड थ्रू आरबीआई. सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस विद द रिजर्व बैंक सर्व्स टू ऑब्जेक्टिव्स. मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है जैसे सारे पावर्स देखो हम अपने पास अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं, इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन हो गया. और अगर मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी, दैट मीन्स आई एम गिविंग माई पावर्स टू अदर्स. सो सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक जन के पास पूरा पावर होना. सेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस विद द रिजर्व बैंक सर्व्स टू ऑब्जेक्टिव्स. अगर रिजर्व बैंक के पास सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के पावर है तो उससे दो पर्पस हमारे सॉल्व होते हैं. First purpose is what? It helps the bank in stabilizing the external value of currency. Second is it helps in pursuing a coordinated policy towards the balance of payment situation of the country. Balance of payment के लिए अलग से एक चैप्टर है, that time in detail I am going to explain you. Balance of payment यहाँ पे मतलब जो हमारी कंट्री में क्राइसिस होती है, जो हमारी रिजर्व्स की और जो हमारी पेमेंट्स की, so it helps in maintaining that. So our one important point is remaining controller of money supply and credit. For that I will make a separate video and in that you are going to understand this well. So up to now I hope you have understood these functions of central bank. Thank you for watching.